ओके, 10वीं जमात के प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक पोएम जिसे आपने इससे पहले भी पढ़ा है, हमने इससे पहले भी आपको उसको बताया है। आज इस पोएम का हम रिवीजन लेंगे जिसका नाम है बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। देखिए दोस्तों, ये यूनिट का 1.3 की पोएम है। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम and the poet itself described very beautifully the innocence of a child and how he requested to the moon that he got so problems that he cannot hear or listen his father's bedtime stories. He is deprived from this. That's why he wanted to listen the bedtime stories. We all of us used to listen the bedtime stories in our childhood days, and we all elders already have listened so many interesting and beautiful stories. Similarly, you all 10 standard students have listened the stories. So the same way, here we are going to understand the innocence and the request of a child who wants the bedtime stories. But how dramatically, how innocently he asks to the moon. What he asks, you can see in the poem. But before starting the poem, friends, let's see here that warming up questions. So my first question is given here. You can see, right? See, basket full of moonlight revision. First question is that, did you like to hear bedtime stories when you were a child? जब आप छोटे बच्चे थे तो क्या आप बेड टाइम स्टोरी सुनते थे? तो ऑफ कोर्स इसका जवाब आपको पता है, आपको मालूम है कि ऑफ कोर्स यस, वी वर वेरी मच क्रेजी टू हियर टू लिसन द बेड टाइम स्टोरीज. तो व्हाट वुड यू आंसर? यस, ऑफ कोर्स we like to hear the bedtime stories when we were the child. And the second question, who usually told you the bedtime stories? आपको आमतौर पर जनरली जो है बेड टाइम स्टोरीज कौन सुनाया करता? बेड टाइम स्टोरीज मतलब बेड मतलब बिस्तर, बिस्तर पर जाने का टाइम, मतलब जब सोने का टाइम होता था तो उस वक्त आपको कहानियां कौन सुनाता था? सो व्हाट वुड यू रिप्लाई? It could can be very simple answer. Our parents, our grandparents, uncle, aunts, and sometimes elder sister, elder brother. So usually parents, they tell us the stories, bedtime stories, the interesting stories, fairy tales, and some genie stories, and some flowers, some stars, twinkling stars, so many beautiful stories. The next question, why did you like them? So why did you like them? Bedtime stories, why you want to listen? So the answer could be because it is very interesting, enthusiastic, and amusing. Usually the children wants to listen the bedtime stories of the fairy tales, and it could be very interesting, very amusing, and very listenable also. हम उन कहानियों से सबक भी सीखते हैं, उससे मजा भी लेते हैं, इसको एंजॉय भी करते हैं क्योंकि बड़ी दिलचस्प होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि हम भी उन कहानियों को पढ़कर सुनकर आगे बढ़े हैं, बड़े हुए हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो मासूम होते हैं, जैसे कि आप भी अभी मासूम बच्चे ही हो, 10वीं के बाद आप थोड़े तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो ये इस तरह के इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो है वो आप भी पसंद करते हैं। तो बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट एंड बिकॉज ऑफ अम्यूजिंग एंड बिकॉज ऑफ सम लेसनेबल स्टोरीज, children want to hear or listen the stories.
The last question of chit chat, my friend. Do you still like to hear bedtime stories again? I repeat the question. Do you still like to hear bedtime stories again? क्या आप अभी भी बेड टाइम स्टोरीज को सुनना पसंद करते हैं? So of course, the answer could be yes. Even I still want to hear the bedtime stories, but this time my son my son tells me the stories. So vice versa, it happens when we were the children. So our parents tells the story, but now my kids tell me the stories, the fairy tales story and genie story and some listenable stories, जिससे हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है, कुछ सबक मिलती है, ऐसी कुछ कहानियां. तो दोस्तों देखिए, ये एक वे ऑफ लाइफ है, बचपन से लेके जवानी तक का और बुढ़ापे तक का. हर एक जो है उसमें पार्टिसिपेट होता है, हर कोई एक दूसरे को जो है कहानियां सुनाता है जब उसको अच्छा लगता है. अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमने पहला पार्ट तो इसका देख लिया, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं चिट चैट का. मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ने किताब लेकर बैठे होंगे. अपनी अपनी बुक, प्लीज टेक योर कोर्स बुक विथ यू, इंग्लिश, पेज नंबर 17, पेज नंबर 17, और एक पेन लेके बैठिए. और जब भी आपको ऐसा कुछ लगे बोर्ड पे अच्छा कुछ काम हुआ है तो आप उसका स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिए दोस्तों, ठीक है. अब इसका सेकंड पार्ट हम लेते हैं. सेकंड पार्ट में आपको मैं बताता हूं कि यहाँ पे एक सवाल है, डिस्कस इन ग्रुप अबाउट द प्रोसीजर ऑफ प्लांटिंग अ ट्री, राइट द स्टेप्स इन बुलेट पॉइंट एंड प्रेजेंट देम बिफोर द क्लास. आपको प्लांटिंग करना मतलब कोई पौधा लगाना है ना दोस्तों. देखिए यहाँ पे मैं बताऊं आपको, प्लांट करना, प्लांट के प्रोसीजर के बारे में आपको बताना है. प्लांटिंग प्रोसीजर, प्लांटिंग प्रोसीजर, तो आपको उसके प्रोसीजर के बारे में, उसके तरीके कार के बारे में बताना है. तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, चूजिंग गुड सीड्स ऑफ प्लांट्स. चूजिंग, और बुलेट पॉइंट में बोला है तो इस तरीके से बुलेट पॉइंट बनाया जाता है. चूजिंग गुड सीड्स ऑफ प्लांट, जो भी प्लांट आपको लगाना है दोस्तों, उसका आपको उसकी सीड, चूजिंग गुड सीड्स, यहाँ पे देखिए, गुड सीड्स ऑफ प्लांट, अच्छे बीज का इंतखाब करना पड़ेगा आपको, अच्छे बीजों का इंतखाब करना पड़ेगा. सेकंड पॉइंट है डिगिंग इन द ग्राउंड. डिगिंग, डिगिंग का मतलब होता है दोस्तों खड्डा करना, जमीन खोदकर पौधा लगाने के लिए उस जगह को बनाना. डिगिंग इन द ग्राउंड. तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, पुटिंग सीड्स इन अ लूज सॉइल. पुटिंग सीड्स इन अ लूज सॉइल. जो कच्ची मिट्टी होती है दोस्तों, जो जिसको हम खोदते हैं खड्डा करने के बाद, उस मिट्टी के अंदर उस सीड को, सीड का मतलब होता है बीज, कोई भी पौधे की, कोई भी प्लांट की जो बीज होती है उसको कहते हैं सीड. तो सबसे पहले हमको उस सीड का इंतखाब करना होगा कि कौन सी पौधा हमको उगाना है. दूसरा, हमें खड्डा करना होगा जमीन के अंदर, ग्राउंड में, और उसके बाद पुटिंग सीड्स इन अ लूज सॉइल, एंड आफ्टर दैट कवर इट, cover it with soil. soil मतलब मिट्टी दोस्तों, soil मतलब मिट्टी, इस मिट्टी से उसको कवर करना होगा. एंड देन द लास्ट स्टेप इज वाटर इट, वाटर इट, फिर उसको पानी देना है. वाटर इट डेली, वाटर इट डेली. अभी एक पॉइंट और भी आ सकता है दोस्तों वाटर इट डेली के बाद, कि टू लुक आफ्टर इट, उसकी देखभाल करना. तो इस तरीके से आप पौधा उगा सकते हो. तो इस पॉइंट्स को आप आपस में डिस्कस कर सकते हो, ग्रुप बना के, 4-4 5-5 बच्चों के ग्रुप बना के. जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर आपको बता दिया कि चूजिंग, अगर जैसे एक ग्रुप ने आपस में डिस्कस किया और ये पॉइंट्स को लाया कि प्लांटिंग प्रोसीजर क्या होता है, कोई भी पौधे को लगाने का तरीका अमल क्या होता है, तरीका कार क्या होता है. तो सबसे पहले अच्छे बीज का इंतखाब किया जाए, सीड का, सीड मतलब बीज. दूसरा, डिगिंग इन द ग्राउंड, खड्डा किया जाए. फिर पुटिंग द सीड इन लूज सॉइल, उस मिट्टी के अंदर आपको
उस सीड को, उस बीज को डालना पड़ेगा। देन कवर इट विथ सॉइल, फिर बाकी जो खड्डे इससे निकाली हुई जो मिट्टी है उसको उससे कवर किया जाए। और देन वाटर इट डेली, फिर उसको जब आप डेली वाटर करोगे, उसको जब आप पानी दोगे, तो इस तरीके से वो पौधा जो है बढ़ने लगेगा। ये उसका प्रोसीजर है। और फिर एक और स्टेप है कि आपको उसका लुक आफ्टर करना पड़ेगा। लुक आफ्टर करना मतलब देखभाल करना दोस्तों। चलिए दोस्तों, अभी यहाँ पर देखिए हमारे 2 स्टेप हो गए। एक स्टेप और है फादर और मदर का, वो भी देख लेते हैं साथ में। उसके बाद फिर मैं आपको पोएम एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा दोस्तों। और इस पोएम से आप जो है अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे, अपने आप को समझ पाओगे कि अरे अरे ये तो हमारे साथ भी हुआ है। तो एक तरफ हम ले लेते हैं फादर और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं मदर। चलिए अब देखिए, यहाँ पे आपको ये समझना है कि फादर आपके लिए क्या करते हैं। फादर जो है आपके लिए वर्क्स हार्ड टू अर्न अ लिविंग। वर्क्स हार्ड टू अर्न अ लिविंग। अर्न अ लिविंग का मतलब रोजी रोटी कमाना बच्चों। वर्क्स हार्ड, बड़े सख्त मेहनत करते हैं फादर, और अर्न अ लिविंग, रोजी रोटी कमाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से माँ जो होती है, कुक्स फूड एंड फीड्स टू द फैमिली। देखिए दोस्तों, फादर के भी काम होते हैं, मदर के भी काम होते हैं। फादर अपना काम करते हैं, मदर अपना काम करती है। फादर का क्या पॉइंट है, वर्क्स हार्ड टू अर्न अ लिविंग, कि वो रोजी रोटी के लिए सख्त मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं। वहीं पे माँ जो है वो घर में कुक्स फूड, खाना बनाती है ना, खाना पकाती है, एंड फीड्स टू द फैमिली, और पूरी फैमिली को जो है वो खाना परोसती है, खाना खिलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, गाइड्स इन चिल्ड्रंस प्रॉब्लम। फादर जो होते हैं वो गाइड्स इन चिल्ड्रंस प्रॉब्लम, बच्चों के जो प्रॉब्लम होते हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और बच्चे को जो है वो गाइड करते हैं। वहीं पे माँ जो होती है, कीप्स द हाउस क्लीन, कीप्स द हाउस क्लीन एंड टाइडी। माँ जो है अपने घर को साफ सुथरा रखती है ना। बिल्कुल उसी तरह के 1-2 पॉइंट और बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको पोएम एक्सप्लेन करता हूँ। पेरेंट, फादर जो होता है वो डिसाइड्स द वेज ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ एंड करियर। वो बच्चे का करियर डिसाइड्स चाइल्ड्स करियर, है ना। और वहां वहीं पर जो है क्या करती है, समटाइम्स टेक्स अ जॉब। माँ भी समटाइम्स जो है वो जॉब को करती है, समटाइम्स टेक्स अ जॉब। क्यों टेक्स अ जॉब? बिकॉज द फैमिली कैन रन स्मूथली financially, they can be healthy if both parents are working, so the family can run easily. Now friends, this was the chit chat section. Now let's enjoy the poem. Here we are going to enjoy the poem Basket Full of Moonlight. Now see friend, this is a very innocent story of a child, how he asked to the moon that why he wants to hear the bedtime stories, because students, children usually wants to hear the bedtime stories from their grandparents, grandfather, grandmother, uncle, aunt, uh, father, mother. But here is a story about a father and a son, because son is unable to hear the stories of his father, because his father goes to the city for work and earn the living. That's why when he returns home, so that time the boy goes to sleep. And when he wake up in the morning, again
he did not find his father because he went to the job for to the city. So it happens every day. So he usually deprived to listen the bedtime stories from his father. So this is the story. So what kind of effort a boy, वो लड़का किस तरह की कोशिश करता है कि उसके फादर उसको अवेलेबल हो जाए, उसको मिल जाए और उसको भी बेड टाइम की कहानियां जो है वो सुनने का मौका मिले दोस्तों. Zishan sir, I request you, please show that picture I sent in your personal number, sir. The moonlight, basket full of moonlight. Just a picture. Can you hear me, Zishan sir? Yes. For a second only. और प्यारे बच्चों देखिए पेज नंबर 18 पे आपको जो पोएम है उस पोएम में देखिए आपको एक चंदा नजर आ रहा है, एक चांद नजर आ रहा है. देखिए वो चांद की रोशनी जो है किस तरीके से नीचे बिखरी जा रही है ना. अभी देखिए आपको जिशान सर वो कुछ तस्वीरें बताएंगे. देखिए ये मून आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर. तो देखिए मून से किस तरीके से रोशनी निकल रही है, बिखर रही है. अब बच्चा जो है इस रोशनी को जब देखता है तो उसके मन में ख्याल आता है. और ख्याल क्या आता है कि उसका जो फादर जब घर लौट कर आते हैं तो बहुत देर हो जाती है, रात हो जाती है. तो और वो रास्ता जो है बड़ा ही डेंजरस है. तो क्यों ना चांद, क्योंकि उस वक्त वहां पर लाइट नहीं है, रोशनी नहीं, कुछ नहीं है. तो वो चांद का सहारा लेता है और चांद को रिक्वेस्ट करता है कि वो रोशनी बिखेरे ताकि सड़क रोड जो है क्लियर हो जाए और वो आसानी से उसके फादर घर जो है वो जल्दी से पहुंच जाए ना. दोस्तों अब इसी पस मंजर में देखिए हमें इस पोएम को देखना है ना. अब मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन पोएम का दिया कि वो बच्चा क्यों मून लाइट्स मांग रहा है, वो भी बास्केट फुल, है ना. आइए देखते हैं पोएम को, पोएम का मजा लेते हैं, पोएम को एंजॉय करते हैं और उसके साथ साथ उसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है दोस्तों, अब पहला स्टांजा हम लेते हैं. यहाँ पे देखिए बच्चा बोलता है ओ मून, ओ मून गिव मी मून लाइट, गिव मी मून लाइट. ओ चांद मुझे चांद की रोशनी दे दो, वो भी कितनी दे दो, बास्केट फुल और 2 बास्केट्स फुल, 2 बास्केट्स फुल. एक चांद की रोशनी दे दो या 2 चांद की रोशनी दे दो. देखिए ये उसकी मासूमियत है. विद सीड्स ऑफ मूनलाइट. और आगे वो बोलता है विद सीड्स, सीड्स मतलब बीज, जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, सीड्स ऑफ मूनलाइट. अभी आपने तस्वीर में देखी होगी चांद की रोशनी दोस्तों, है ना. तो चांद की रोशनी की जो बीज होती है वो बीज वो मांग रहा है बच्चा. देखिए अब इस पहले स्टांजा में जो है आपको क्या देखने के लिए मिलेगा दोस्तों कि यहाँ पर आपको एलिट्रेशन देखने के लिए मिलेगा फिगर ऑफ स्पीच में. वो मैं आपको बाद में बताता हूँ. सबसे पहले मैं आपको ये पोएम का स्टांजा जो है ये एक्सप्लेन करता हूँ. तो बच्चा कहता है ओ मून, ओ चांद, गिव मी मून लाइट, मुझे दो चांद की रोशनी, मुझे चांद की रोशनी दो. कितनी दो, बास्केट फुल, एक बास्केट फुल और 2 बास्केट फुल या 2 बास्केट फुल. बास्केट, बास्केट का मतलब होता है टोकरी, है ना. बास्केट फुल मतलब टोकरी भरकर, टोकरी भरकर और 2 टोकरी भरकर. गिव मी मुझे दो क्या, मून लाइट चांद की रोशनी दो. और साथ में क्या मांग रहा है वो कि विथ सीड्स ऑफ मून लाइट, विथ सीड्स ऑफ मून लाइट. और उसके अंदर उस एक टोकरी के अंदर चांद की रोशनी मांग रहा है, एक टोकरी के अंदर मून लाइट चांद की रोशनी के जो बीज होते हैं वो मांग रहे हैं. अब ये क्यों मांग रहे हो बच्चा, देखिए अब यहाँ पर आपको जो है दूसरे स्टांजा में पता चलेगा. लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर जो है एलिट्रेशन की एक एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों. देखिए यहाँ पर जो है मून लाइट जो है ये आया है यहाँ पे और बास्केट फुल और 2 बास्केट फुल. जब भी कोई इस तरीके से वर्ड रिपीट होते हैं पोएम के अंदर या लाइन के अंदर तो वो जो है एलिट्रेशन की एग्जांपल कहलाता है दोस्तों. ठीक है. अब यहाँ पर अच्छा, अब इसके अंदर जो आप सोच रहे होंगे कि राइमिंग वर्ड और राइमिंग स्कीम क्या है. तो राइमिंग वर्ड तो इसमें यहाँ पर एक जैसे ही है, मूनलाइट मूनलाइट. अगर सनलाइट होता तो मूनलाइट और सनलाइट जो है उसका राइमिंग वर्ड होता है. अब चौथी बात ये कि इस पोएम, ये पोएम जो है दोस्तों खास तौर से ये फ्री वर्स है,
इसे कहते हैं फ्री वर्स। फ्री वर्स का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई राइमिंग स्कीम नहीं है दोस्तों। हर लाइन अपने आप में एक जुदा है, हर लाइन अपने आप में एक अलग किस्म की है ना। अब देखिए यहाँ पे ओ मून, मून लाइट, बास्केट फुल, मून लाइट, तो इसको हम बना सकते हैं, लेकिन ये पोएम स्पेशली जो है वो फ्री ऑफ वर्ड्स है। अगर फिर भी अगर आप इसको समझना चाहते हैं राइमिंग स्कीम के तौर पे, तो मैं बता देता हूँ। मून जो है उसको हम ए दे सकते हैं, मून लाइट को हम बी दे सकते हैं, बास्केट फुल को हम सी दे सकते हैं, और मून लाइट जो है ऊपर के मून लाइट से मिल ही रहा है तो वो उसको हम वापस बी दे सकते हैं। लेकिन इस पोएम के अंदर जो है आपको फ्री वर्ड्स के बारे में ही लिखना होगा कि दिस पोएम इज और दिस स्टांजा इज फ्री। नाउ सेकंड स्टांजा हम देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम एक एक स्टांजा को अच्छे से एक्सप्लेन करके देंगे आपको। आप बस अपनी किताब में, बुक में देखिए, समझिए, उसके ऊपर आप निशानत लगाइए। नाउ फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज, फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज। अब देखिए दोस्तों, ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ, ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ। अब यहां पर सेकंड स्टैंजा में आपको ये पता चलेगा कि वो क्यों चांद की रोशनी मांग रहा है। आई वॉन्ट टू सो मेनी, आई वॉन्ट टू सो मेनी। देन स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, स्मॉल स्मॉल moons of light. Then the whole village goes to the city daily to work. The whole city goes to the work daily. अब देखिए यहां पर दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको पोएम एक्सप्लेन करने का मकसद मेरा यही है कि इस बोर्ड के ऊपर आपको जो है प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि इसके राइमिंग वर्ड क्या है, राइमिंग स्कीम क्या है। और जब हम हाथ से देखकर कोई प्रैक्टिस करते हैं, कोई चीज समझते हैं, तो उसका नक्श जो होता है हमारे माइंड के अंदर बहुत देर तक होता है। हम जब कोई चीज को प्रैक्टिकली देखते हैं होते हुए, तो जो हैपनिंग होती है वो हैपनिंग हमारी नजरों में समा जाती है दोस्तों। तो इसीलिए अब देखिए, जब पहले स्टांजा में बच्चे ने एक बास्केट फुल, दो बास्केट फुल चांद की रोशनी मांगी, और साथ में उसने सीड्स भी मांगी और चांद की रोशनी के बीज भी मांगे। अब तो सेकंड स्टांजा में उसका रीजन भी बता रहा है, फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज, के शहर से लेके मेरे विलेज तक, मेरे गांव तक, ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ, उस पाथ के, उस रोड के दोनों साइड्स में, है ना, हर रोड का, हर सड़क के दो साइड्स होते हैं। तो आई वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, तो मैं चांद के छोटे 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 चांदों के रोशनी के पौधे लगाना चाहता हूँ, उनकी सीड को मैं बोना चाहता हूँ, ताकि वो जो शहर से गांव जब लोग आते जाते हैं तो उस सड़क पर, उस रोड पर जो है अंधेरा होता है, और जब वो अंधेरा होता है तो वो बराबर अंधेरे में सही तरीके से चल नहीं पाते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं, और फिर उनको किसी भी चीज का खतरा हो सकता है। वो आगे भी आएगा आपको अभी। तो आई वॉन्ट, तो वो बच्चा जो बोल रहा है, पोएट जो है, पोएट जो स्पीकर है जिसका नाम है कि सुनील शर्मा, सुनील शर्मा, तो ये जो हमारे पोएट है, इन्होंने आय का वर्ड जो है, स्पीकर जो है, पोएट जो है अपने लिए इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है, बच्चे की शक्ल में स्पीकर बनकर पोएट बोल रहा है और कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू सो मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, कि मैं चांद चांद के, छोटे छोटे चांद के रोशनी के पौधे लगाना चाहता हूँ। वो भी कहाँ, बोथ साइड्स ऑफ द रोड, बोथ साइड्स ऑफ द पाथ, उन सड़क, उस रोड पे, उस सड़क के दोनों साइड में। एंड द होल सिटी गोज टू द वर्क डेली, क्योंकि हमारा पूरा गांव जो है वो काम करने के लिए जो है वो गांव जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर वो बच्चा जो है चांद की रोशनी मांग रहा है और सड़क के दोनों साइड में, रोड के दोनों साइड में पौधे उगाना चाहता है। इसके पीछे उसकी एक अनोखी, प्यारी और मासूम मंशा है। उसका एक मकसद है कि उस रोड के दोनों साइड में जो रोशनी के पौधे लगाना चाहता है, तो वो अपने फादर से कहानी सुनना चाहता है। अब वो धीरे धीरे आपको पूरी पोएम जो है अच्छे से समझ में आ जाएगी।
अब उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताता चलूं। अब देखिए जैसे यहाँ पे पहली लाइन में विलेज दिया है, दूसरी लाइन में पाथ दिया है, तीसरी लाइन में मेनी दिया है, चौथी लाइन में लाइट एंड देन डेली। तो कोई भी लाइन जो है वो किसी से मैच नहीं कर रही है, ना राइमिंग वर्ड से मैच कर रही है और न ही राइमिंग स्कीम से मैच कर रही है दोस्तों। तो इसीलिए इस पोएम के अंदर जो है खास तौर से जो है आपको फ्री वर्स लिखना है। बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट में अगर आपको राइमिंग स्कीम पूछा जाए, क्या होगा कि कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाएगा कि इसका राइमिंग स्कीम बताओ, तो आप वहां पर बताएं, आप बताएं, लिखें वहां पे कि दिस इज अ फ्री वर्स। देखो यहाँ पे मैं वापस बता रहा हूँ आपको, लिखिए, लिख के फ्री वर्स, फ्री वर्स स्टांजा। जो भी स्टांजा के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आप उसे बताइए कि फ्री वर्स स्टांजा, मतलब इसके अंदर राइमिंग स्कीम नहीं है दोस्तों, और राइमिंग वर्ड भी इसमें नजर नहीं आ रहा है, तो उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब आपको ये स्टांजा भी आप समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब इसके आगे के स्टांजा की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, इसका नेक्स्ट स्टांजा जो है दोस्तों यहाँ पे दिया है, इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बैक, इट बिकम्स डार्क ऑन इट्स वे बैक, वे बैक। जब उसका फादर, उस बच्चे का फादर जब रिटर्न आता है घर पर, और जब वो अपने रास्ते से वापस आता है, तो वहां पर जो है बहुत ही ज्यादा अंधेरा हो जाता है। बिकम डार्क, डार्क मतलब अंधेरा, अंधेरा मतलब शाम हो जाती थी, रात हो जाती थी, तो वो डार्क हो जाता था, अंधेरा हो जाता था। एज माई विलेज इज क्वाइट फार, क्यों उसका विलेज जो था वो क्वाइट फार था। फार का मतलब होता है दोस्तों दूर, उसका विलेज दूर था, तो उसका फादर जो है वो जब विलेज तक पहुंचता था तो पहुंचते पहुंचते जो है बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता था। उसी के साथ, और द रूट इज टफ एंड फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस। रूट, रूट मतलब वो रास्ता, जिस रास्ते से उसके फादर आते थे वॉज फुल ऑफ, फुल ऑफ डेंजर, फुल ऑफ डेंजर था, क्योंकि वो जो रास्ता था वो खतरे से भरपूर था। क्यों? क्योंकि वहां पे फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस, स्नेक्स एंड स्कॉर्पियन, वहां पे स्नेक्स और स्कॉर्पियन थे उस रूट पर, उस रास्ते पर। तो अंधेरे में स्नेक्स जो है और स्कॉर्पियन जो है वो डस सकते हैं, स्टिंग मार सकते हैं, काट सकते हैं, जिसकी वजह से किसी की भी मौत हो सकती है ना। तो इसीलिए वो बच्चा देखो कितना, कितनी फिक्र कर रहा है अपने फादर की, नॉट ओनली हिज फादर बट द विलेजर्स ऑल्सो। वो अपने फादर की भी फिक्र कर रहा है और अपने गांव वालों की भी फिक्र कर रहा है, क्योंकि हर घर में छोटे बच्चे होते हैं, सब अपने पेरेंट्स की फिक्र करते हैं कि उनके पेरेंट्स जो है वो कब घर लौटे और उन्हें बेड टाइम स्टोरी सुनाए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बच्चे की मासूमियत देखो, और मासूमियत तो है लेकिन उसका मांगने का अंदाज देखिए कि वो किस तरीके से अपने फादर की परेशानी को दूर करना चाहता है। वो ये कह रहा है चांद से जब वो रोशनी मांग रहा है, एक बास्केट, दो बास्केट, उसके बीज और उसके पौधे को रोड के दोनों साइड में जब वो बोना चाह रहा है, ताकि वो चांद की जब रोशनी के पौधे उगेंगे तो रोड के दोनों साइड में रोशनी हो जाएगी। तो इसीलिए वो कह रहा है कि मेरे फादर जब घर लौटते हैं, वे बैक करते हैं, घर लौटते हैं, तो बिकम डार्क, बहुत अंधेरा हो जाता है। और अंधेरा होने की वजह से, क्यों अंधेरा हो जाता है? क्योंकि विलेज जो है बहुत दूर है, हमारा गांव शहर से, आते आते अंधेरा हो ही जाता है। और फिर जब वो रूट जो है, वो रास्ता जो है वो वॉज फुल ऑफ डेंजरस, फुल ऑफ डेंजर, खतरे से भरपूर है। क्यों? क्योंकि वहां पे स्नैक्स भी है और स्कॉर्पियंस भी है, सांप भी है और बिच्छू भी है। इसलिए देखिए बच्चा जो अपने फादर की केयर कर रहा है, क्यों केयर कर रहा है? ताकि उसको कहानियां सुनने के लिए नहीं मिल रही है दोस्तों। अब यहाँ पर इसके आगे का पार्ट मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। हाँ, तो बच्चा जो है उसको खतरा समझ में आ रहा है कि उस रूट के ऊपर जो है स्नेक्स भी है, स्कॉर्पियंस भी है, और एक चीज और भी है वहां पे, नीदर बस नॉर कार्ड फ्लाइज।
नीदर बस नॉट कार्ट फ्लाइज। वहां पे देखिए, बस का मतलब होता है आप जिस बस में बैठते हो, गाड़ी में बैठते हो, और कार्ट मतलब बुलक कार्ट हो सकती है, या बैलगाड़ी, या कोई और गाड़ी हो सकती है। तो वहां पे ना बस है ना गाड़ी है। फ्लाइज का मतलब होता है चलना फिरना, मतलब या आना जाना। ना वहां पर उसके विलेज में, शहर से कोई गाड़ी आती जाती है, और ना ही कोई और जरिया है वहां पे ट्रेवलिंग का। इसलिए वहां पर लोगों को जो है पैदल ही आना जाना पड़ता है। तो when my father returns home, I am asleep. When father return, जब उसके फादर वापस आते हैं, तो I am asleep, तो मैं सो चुका होता हूँ दोस्तों। बच्चा बोल रहा है कि जब मेरे फादर रात में जब शहर से काम करके घर पर वापस आते हैं, तो when my father return, मेरे फादर जब रिटर्न आते हैं, so I am asleep, मैं सो चुका होता हूँ, मैं सोता हुआ होता हूँ, मैं सो जाता हूँ मतलब उस वक्त तक। और फिर मैं अपने फादर से बेड टाइम स्टोरीज को नहीं सुन पाता हूँ। आगे बताता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर इसके आगे वो जो बोलता है कि एंड ही गोज बैक अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाइल आई एम स्लीपिंग। गोज बैक, और गोज बैक टू वर्क, उसके फादर जो है वो काम पर वापस चले जाते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली अर्ली मॉर्निंग। और उस वक्त भी जो क्या है, आई एम स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग, उस वक्त भी जो है मैं सो रहा होता हूँ, जिसकी वजह से मैं फादर से ना मॉर्निंग में मिल पाता हूँ और ना ही नाइट में मिल पाता हूँ। ना फादर से कहानी सुनना तो दूर की बात, मैं उनसे बात तक नहीं कर पाता हूँ। इसलिए वो बच्चा जो है बहुत केयर ले रहा है। फिर वो बच्चा जो है वो रिक्वेस्ट करता है, किससे रिक्वेस्ट करता है? मून से रिक्वेस्ट करता है। कहता है ओ मून, ओ मून, गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, गिव मी बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन ऑन लोन। देखिए बच्चों, उस बच्चे की मासूमियत देखिए। वो बच्चा जो है, जब उसने अपने सारे प्रॉब्लम्स बता दिए, उसने अपनी सारी वो बता दिए कि क्या किस वजह से वो अपने फादर की कहानियां नहीं सुन पा रहा है, फादर से मिल नहीं पा रहा है, ना सुबह मिल पा रहा है ना रात में मिल पा रहा है। तो उसको पूरा एहसास है कि वो जो सड़क है, वो जो रोड है, जो रूट है, जो शहर से गांव आता है, जो गांव से शहर जाता है, वो फुल ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस है। और फादर जब आते हैं, लौटते हैं, तो तब तक अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरे में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए वो पूरी कोशिश कर रहा है और मून से रिक्वेस्ट कर रहा है वो बच्चा, पोएट, जो कि स्पीकर की शक्ल में बोल रहा है। वो कह रहे कि गिव मी बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट ऑन लोन। लोन का मतलब होता है दोस्तों उधार लेना या कर्ज लेना। आप देखिए, वो चांद से उधार मांग रहा है, लोन मांग रहा है। लोन, लोन मतलब उधार या कर्ज। देखिए कितना इंटरेस्टिंग पोएम है। पोएट जो है, एक्चुअली दोस्तों ये पोएम जो है ये डोगरी लैंग्वेज में बनी है, डोगरी लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। लेकिन सुनील शर्मा जी जो है, इन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपके लिए पेश किया है। अभी दोस्तों आप सोच रहे होंगे व्हाट इज डोगरी लैंग्वेज, ये डोगरी लैंग्वेज क्या है? तो दोस्तों डोगरी लैंग्वेज जो है ये एक काइंड ऑफ लैंग्वेज है जो कि हिंदुस्तान की ही लैंग्वेज है, जो कि खास तौर से जम्मू कश्मीर और नॉर्थ पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। तो ये, और इसे हिंदुस्तान के कम से कम जो है 5 मिलियन लोग बोलते हैं डोगरी लैंग्वेज को। जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ पंजाब में और हिमाचल प्रदेश में डोगरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। और ये पोएम जो है, मासूमियत से भरी पोएम जो है, ये डोगरी लैंग्वेज में ही लिखी है। लेकिन सुनील शर्मा जी ने इसे हमारे लिए जो है इंग्लिश में पेश किया है, ट्रांसलेट करके। तो यहाँ देखिए बड़ी मासूमियत से वो बच्चा जो है वो लोन मांग रहा है चांद से कि मुझे चांद की रोशनी जो है वो लोन पर दे दो। अब उसके आगे देखते हैं दोस्तों। फिर वो कहता है बच्चा कि आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट। आई वॉन्ट, बच्चा क्या चाह रहा है? आई वॉन्ट लाइट,
लाइट करना मतलब रोशनी करना। द डार्क रूट, डार्क रूट वो जो अंधेरा रास्ता है जहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है, तो उस डार्क रूट को जो मैं लाइट करना चाहता हूँ। लाइट करना मतलब रोशन करना चाहता हूँ दोस्तों। और वो कहता है कि सो डैट माय फादर रिटर्न्स अर्ली, ताकि मेरे फादर जो है वो जल्दी घर वापस आ जाए। रिटर्न्स, सो डैट माय फादर रिटर्न्स अर्ली, ताकि मेरे फादर जो है वो घर जल्दी आ जाए। क्यों जल्दी आ जाए? कि वो उस वक्त सोया ना हो और उसके फादर उसको बेड टाइम स्टोरीज सुनाए। इसलिए वो चाहता है कि आई वांट लाइट, मैं रोशनी करना चाहता हूँ द डार्क रूट, उस अंधेरे रास्ते को। सो डेट, ताकि माय फादर रिटर्न्स अर्ली, जब ताकि उसके फादर जब जल्दी घर वापस आए। सो आई टू वांट टू हियर फेरी टेल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम। देखो वही बात, जो बच्चे की नीयत है, जो बच्चे की चाहत है, वो बच्चा जो है वो बोल रहा है कि want to, I want to hear fairy tales, fairy tales, परियों की कहानियां सुनना चाहता है वो बच्चा, है ना। बेड टाइम स्टोरीज को सुनना चाहता है। बेड टाइम स्टोरीज, जीने की कहानी हो सकती है वो, और फेरी टेल हो सकती है, या कोई लेसनेबल स्टोरीज हो सकती है। लेसनेबल, है ना दोस्तों। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिसे बच्चे बड़े इंटरेस्ट के साथ उसको सुनना पसंद करते हैं। तो ये सारी तीन चीजें हैं जो फेरी टेल्स है, बेड टाइम स्टोरी जीनी की है, लेसनेबल है, सबक आमोज है। इन कहानियों को वो सुनना चाहता है अपने फादर से। तो वो रास्ते में लाइट करना चाहता है, रोशनी करना चाहता है, ताकि फादर उसके जब रोशनी की वजह से घर जल्दी आ जाए, बगैर किसी खतरे के आ जाए, तो वो उन कहानियों को वो सुन सकता है। अब देखिए दोस्तों, इसका लास्ट स्टांजा है, आखिरी स्टांजा है। आखिरी स्टांजा में वो बोलता है, ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, गिव मी बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, मुझे गिव मी बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, चांद की रोशनी दे दो, है ना। आई वांट टू सो सीड्स ऑफ मून, आई वांट सो। देखो सो का क्या मतलब होता है? तो सो का मतलब होता है बीज को बोना, जमीन में बीज को बोना। सो का मतलब होता है जमीन, बीज को जमीन में बोना। आई वॉन्ट टू सो द सीड्स, सीड्स मतलब बीज, है ना। बोथ साइड्स ऑफ द रोड, बोथ बोथ साइड्स ऑफ रूट, उस रास्ते के दोनों साइड में मैं जो कि उस सीड्स को बोना चाहता हूँ। बोना मतलब बीज को मिट्टी में दबाना और उसको वाटरिंग करना, ताकि वहां से एक पौधा जो है निकल पड़े। और वो कहता है कि आई वांट टू सो सीड्स ऑफ मून ऑन द साइड्स ऑफ द रूट रोड, वो चांद की रोशनी को दोनों साइड में उगाना चाहता है। अब देखिए दोस्तों, ये बड़ी इंटरेस्टिंग पोएम, पूरी पोएम मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। यहाँ पर बच्चा जो है कहता है कि उसकी चाहत ये है कि ही रिक्वेस्ट टू द मून that he wants one basketful or two basketfuls of the seeds of moonlight, because he wants to sow the seeds of moon both sides of the road, because his father goes to the city for earn the living, very he working very hard, and when he returns home it becomes very deep dark, and due to the dark, uh, his life can be in danger, because that road is full of snakes and the scorpions, and because there is no ways of cart and the wheels, as well as the bus, there is no service of buses and the other means of traveling. That's why anyhow his father comes and goes by walk, and it is very difficult, very risky. That's why the boy wants moonlights from the moon. So it is a kind of request
which is very innocent request from the child to the moon. अब देखिए दोस्तों, ये पोएम आपको यहाँ पे समझ में आ गई है। अब साथ में मैं आपको यहाँ एक चीज और बताता हूँ दोस्तों। आप अपनी बुक में देखिए, एक चीज रह गई है कि स्टांजा नंबर 2 में देखिए दोस्तों, एक फिगर ऑफ स्पीच बताता हूँ आपको। स्टांजा नंबर 2 में देखिए दोस्तों, उसकी चौथी लाइन में, स्टांजा नंबर 2 की चौथी लाइन में और यहाँ पे दिया हुआ है कि आई वांट टू शो मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, है ना। देखिए स्मॉल स्मॉल जो है 2 बार रिपीट होते हैं दोस्तों। अब जब इस तरीके की लाइन अगर आपको पूछी जाएगी तो आप वहां पर क्या बताएंगे दोस्तों? फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड रिपीटेशन। ठीक है, जब सेंटेंस में पोएट 2 वर्ड, 3 वर्ड या सेम टाइप के प्रोनाउंस होने वाले वर्ड जो है या अल्फाबेटिकली वो सेम होते हैं, तो जब ऐसे कोई वर्ड वो रिपीट करता है, जैसे यहाँ पे स्मॉल स्मॉल है, तो उस लाइन को फिगर ऑफ स्पीच में रिपीटेशन कहते हैं दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखिए, वहां पे आप मांगता है तो निशान लगा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्जिन में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन जो है, आप ध्यान से देखिए अपनी किताब के अंदर, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट डज द पोएट विश टू गेट फ्रॉम द मून एंड व्हाई। पोएट जो है उसकी विश क्या है, वो मून से क्या चाहता है और व्हाई, और क्यों चाहता है। तो इसका आंसर हो सकता है दोस्तों कि द पोएट विशेस टू गेट बास्केटफुल और 2 baskets of moonlight from the moon so that he can sow the seeds of moonlight and the dark wood becomes very lightful, and his father comes safely to the home, and after that he can listen the bedtime stories from his father. So this could be the answer, my friends. Now second question दोस्तों, in the margin in pink area you can see, why is the road from the city to the village dangerous? सवाल है कि रोड का जो रास्ता है जो विलेज की तरफ आता है वो इतना डेंजरस क्यों है। तो उसका आंसर हो सकता है, द रोड फ्रॉम द सिटी टू विलेज इज डेंजरस बिकॉज इट इज डार्क, टफ, full of snakes and the scorpions, and because of the darkness, and when the traveler, when he comes and goes by the same road, and due to the darkness, so it is possible that snakes and the scorpions can sting them, and it could be very poisonous and very risky for the life. That's why the roads are very dangerous. Next question दोस्तों, from the margin point given, why does the poet want his father home early? It is very simple question. हम पूरी हमारी जो पूरी पोएम है इसी के ऊपर बेस्ड है दोस्तों, कि वो बच्चा जो है वो अपने फादर को घर पर क्यों चाहता है कि उसका फादर जो है वो घर पर जल्दी आ जाए। तो सिंपल है, बिकॉज द चाइल्ड मिसेस दिस फादर्स प्रेजेंस एवरी नाइट। फादर जो है अपने बच्चा जो है वो अपने फादर को एवरी नाइट एवरी मॉर्निंग जो है वो मिस करता है, उनसे उससे he cannot be able to talk with him and listen the bedtime stories and hello hi namaste something like that. तो वो अपने फादर को बहुत मिस करता है, इसीलिए he wants his father come early to so that he can listen stories सुन सके, चैटिंग कर सके, टॉकिंग कर सके, बातचीत कर सके। After the last question in the margin, friends, how do you spend your evening time with your family members? अब देखिए दोस्तों, इसका आंसर आप पर्सनली आप दे सकते हो। अभी मैं आप हर एक से पूछता हूँ कि हाउ डू यू स्पेंड योर इवनिंग टाइम विथ योर फैमिली और विथ योर फ्रेंड्स। सो इट कुड बी डिफरेंट आंसर्स। आप बता सकते हो कि इन द इवनिंग आई गो टू द गार्डन with my mother, with my father, with my elder sister, or with my friends. आप ये सब चीजें बोल सकते हो।
because this is the leisure time for the students or the child or the children. They can generally goes to the garden in the evening. So it could be the answer. और भी हो सकता है दोस्तों कि आप sometimes you can go to the uncle auntie's house to celebrate some functions. ये भी हो सकता है. तो दोस्तों देखिए, here we have completed to explain the full poem, and the marginal question and the chit chat questions we have already solved here. So time is I think running very rapidly, very fast. So here I would like to give you the chance to ask me the questions, my friends. The second part of this poem, inshallah, we will see in our next lecture, or some other topic we can take in our other lecture, friends. Here, I conclude my explanation of this poem, Basket Full of Moonlight. Now, friends, I request you, all the students, please ask your questions, whatever you want, from the poem which you did not understand yet. Okay, friends? कोई सवाल आपको करना है तो आप प्लीज पूछिए. एक बच्ची ने लिख के भेजा है अम्मी अब्बा. अब इसका क्या मतलब है? अम्मी अब्बा मतलब पेरेंट्स. तो अगर आपका सवाल ये है कि वो अम्मी को याद कर रहा है या अब्बू को याद कर रहा है, तो वो फादर को याद कर रहा है, वो बच्चा जो है. ठीक है. और कोई सवाल दोस्तों? कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन? Any doubt if you have, you can ask me the question. Anybody? Friends, if you have any doubt, any questions regarding the poem, any part of the poem, if you don't understand, you can ask me. शुक्रिया बेटा. एक बच्चे ने कहा कि सर आप कितना अच्छा एक्सप्लेन करते हो. बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, जज़ाकल्लाह. आपको समझ में आया. दुआओं की बहुत बहुत दरख्वास्त है. वालेकुम अस्सलाम. एक बच्चा सलाम कर रहा है. वालेकुम अस्सलाम बेटा. थैंक यू. मुझे ये बताइए, आपको पोएम समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? पोएम समझ में आई हो तो आप हाँ. एक बच्चे ने कहा है यस, बहुत अच्छे से समझ में आया. बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, जज़ाकल्लाह. दुआओं की बहुत बहुत दरख्वास्त है आपसे. एक और. हाँ, ओके ओके, शाबाश बेटा. वालेकुम अस्सलाम. ठीक है बेटा. ओके ओके, समझ में आया जी. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया. ठीक है. वालेकुम अस्सलाम. कोई सवाल, कोई डाउट जो पोएम में आपको नहीं समझ में आए वो पूछिए बच्चों. ओके ओके, वेलकम वेलकम. थैंक यू बेटा, वेलकम. यू आर मोस्ट वेलकम. बेटा एनी डाउट? थैंक यू बेटा. कोई ऐसा वर्ड? वालेकुम अस्सलाम, वेलकम बेटा. वेलकम बेटा. थैंक यू बेटा. कोई डाउट हो तो पूछो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों. थैंक यू, वेलकम बेटा. हाँ बेटा, देखिए इसका जो है सेंट्रल आइडिया बहुत सिंपल है बेटा. एक बच्ची ने पूछा है इस पोएम का सेंट्रल आइडिया बताना है. तो इस पोएम का सेंट्रल आइडिया जो है एकदम सिंपल है बेटा, कि इसमें जो है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द लोनलीनेस ऑफ अ चाइल्ड इन अ रिमोट विलेज अनडाउटेड बाय मॉडर्न एमिनिटीज. उस बच्चे को जो है बहुत सारी फैसिलिटीज है घर में बेटा, लेकिन उसकी जो इच्छा है, उसकी जो चाहत है कि वो अपने फादर से बातचीत कर सके, वो उसके फादर से बेड टाइम स्टोरीज को सुन सके, तो वो सुन नहीं पा रहा है. वो लोनलीनेस फील कर रहे हैं.
वो अकेलापन महसूस कर रहा है बेटा। तो ये इस कहानी का शीर्षक, इस कहानी का सेंट्रल आइडिया है। तो इसीलिए उस बच्चे ने जो है अपने फादर के लिए मून से रिक्वेस्ट की है कि वो उसको बास्केट फुल मून लाइट दे उसकी सीट से, ताकि वो रोशनी उस रोड पर जगा दे, उगा दे, और उसका फादर बखैर और आफियत घर जल्दी से पहुंचे और उसे कहानियां सुनाए। ये इस कहानी का सेंट्रल आइडिया है दोस्त। एनी मोर क्वेश्चंस माय फ्रेंड्स? और कोई मेरी बहन, कोई भाई? यस प्लीज पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ, नीदर का मतलब क्या है? हाँ बेटा, नीदर का मतलब ना ही, ना ही। नीदर का मतलब ना ही। जैसे पोएम के अंदर यहाँ पे यूज किया गया ना बेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीदर के साथ नॉर भी आता है एक्चुअली। यहाँ पर नीदर बस नॉर कार्ट प्लाइस, जो तीसरा स्टांजा है उसके अंदर दिया है बेटा। देखिए, नीदर बस नॉर कार्ट प्लाइस, क्योंकि वो जो बच्चे का फादर है वो गांव विलेज से सिटी की तरफ जब काम के लिए जाता है, जिस रूट से वो आता जाता है, तो यहाँ पे लाइन बड़ी खूबसूरत दिखी है इस पोएट ने कि नीदर बस नॉर कार्ट प्लाइस, कि ना ही वहां पर कोई बस आती जाती है और ना ही कोई कार्ट आती जाती है। तो नीदर मतलब ना ही, और नॉर का मतलब ना, है ना ही और ना। जैसे हम नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करते हैं बेटा। एनी मोर क्वेश्चंस? और कोई डाउट बेटा? थैंक यू वेरी मच, आपको समझ में आया, शुक्रिया। ओके, वेलकम बेटा। और कोई सवाल बेटा? मेरा बेटा, स्कॉर्पियन का मतलब होता है बिच्छू। हाँ, थैंक यू बेटा। स्कॉर्पियन मीन्स बिच्छू, वो स्टिंग्स, जो कि डंग मारता है और जो कि बहुत पॉइजनस होता है। इंसान मरता बहुत लेट है लेकिन तड़प तड़प कर मरता है। जी बेटा, नॉब का मतलब नहीं, एक्चुअली नॉब कोई वर्ड तो यूज ही नहीं किया है, लेकिन नॉब का मतलब नहीं होता है। और कोई सवाल बेटा? ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को पोएम जो है वो अच्छे से समझ में आई है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूंगा इंशाल्लाह, और जितना मुझसे हो सकेगा मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपके लिए। जिशान सर, कैन आई लीव नाउ? Yes, sir, you may leave now. ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।